کیوں بلایا تھا آپ کو میر وجاہت خان نے؟ ممتاز بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو زرنب خان کو سخت تیوروں سے اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ گہرا سانس لے کر زرتاشا سے مخاطب ہوئیں۔ زرتاشا بیٹا، جاؤ ذرا مہتاب کو بلا لاؤ، وہ تمہاری تائی جان کے کمرے میں ہے۔ جی اماں۔ زرتاشا نے اپنی کتابیں وہیں رکھیں اور کمرے سے نکل گئی۔ زرنب طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ماں کو دیکھنے لگی۔ اوہ، تو میر وجاہت خان نے کوئی نیا حکم جاری کر دیا ہے اور ان کے چھوٹے لاڈلے بیٹے میر اعظم خان کی بیوی ممتاز بیگم ان کا حکم بجا لانے میں سر کی بازی بھی لگا دیں گی۔ تم چپ رہو زرنا، تمہیں تو چھوٹے بڑے کی تمیز ہی بھولتی جا رہی ہے۔ کم سے کم مرے ہوئے باپ کو تو بخش دو۔ میر وجاہت خان نے میرے مرے ہوئے باپ کو بخشا؟ کیا انہوں نے سوچا کہ آپ کو اپنی پسند کے خلاف بیاہ کر لانے والا میر اعظم خان اب اس دنیا میں نہیں رہا؟ تو پھر کیوں ان کے کیے کی سزا 22 سالوں سے آپ اور ہم تینوں کو دے رہے ہیں؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ کیا ہوا ہے اماں؟ اسی لمحے بڑی بیٹی مہتاب اور اس کے پیچھے زرتاشا کمرے میں داخل ہوئیں تو زرنب کو غصے میں دیکھ کر مہتاب چونک گئیں، کیونکہ زرنب کے غصے کا مطلب کسی طوفان کی آمد تھا۔ تشریف لائیے مہتاب اعظم خان، لگتا ہے اس بار اماں کے ناتواں کندھوں نے میر وجاہت خان کے حکم کا بوجھ اٹھانے سے جواب دے دیا ہے جو آپ کو یاد فرمایا جا رہا ہے۔ جی تو اماں اب کون سی قربانی دینی پڑے گی ہمیں؟ مہتاب، اسے کہو کہ میری نظروں سے دور ہو جائے ابھی۔ ممتاز بیگم غصے سے بولی تو زرنب کچھ کہتی کہتی لب کاٹ گئی اور مہتاب نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہم لوگوں کے آغا جان نہیں ہے وہ صرف میر حیدر خان کے بچوں کے آغا جان ہیں۔ اماں یہ بات کتنی بار سمجھاؤں میں آپ کو؟ سمجھنے کی تو تم لوگوں کو ضرورت ہے، یہ زبان ہمارے لیے کتنی مشکلیں لے کر آ رہی ہے اس چیز کا تم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں۔ یہ مت بھولو کہ اس گھر کے علاوہ ہمارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں چاہیے ہمیں یہ خدا ترسی میں دیا گیا ٹھکانہ۔ زنات چیخ کر بولی۔ اب چپ کر جاؤ زناب، اماں کی بات تو سن لو، مہتاب نے سختی سے کہا تو وہ اپنے غصے کو قابو میں کرنے لگی۔ اماں بتائیں نا اب۔ کافی دیر سے خاموش کھڑی زرتاشا نے کہا تو ممتاز بیگم نے خاموش نظر تینوں پر ڈالی اور بولی، میرے خیال میں مہتاب اور زینب نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب صرف زرتاشا ہی اپنی تعلیم جاری رکھے گی۔ وہ خاموش ہو گئیں کیونکہ زرناب کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا، پر مہتاب نے اماں کو مزید بولنے پر اکسایا۔ مہتاب کی شادی کر دینی چاہیے، اتوار کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، آغا جان کے دوست کا پوتا ہے، اپنا بزنس ہے اس کا۔ یہ سنتے ہی زینب چونک کر مہتاب کی طرف دیکھنے لگی جو خود بھی سکتے میں اماں کو دیکھ رہی تھی۔ پر اماں، مہتاب آپی کے ماسٹرز کا آخری سال ہے اور زینب آپی کے میڈیکل کے بھی ابھی 2 سال باقی ہیں۔ زرتاشا کو ان کی دوسری بات سے زیادہ پہلی بات قابل اعتراض لگی تھی۔ میں نے بھی ایسا ہی کہا تھا، مگر آغا جان کہتے ہیں کہ عورت کا کام صرف ہانڈی روٹی ہے، اور یہ کہ میرے سر پر 4 پوتیوں کا بوجھ ہے، ایک ایک کر کے وہ اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ زرنب کو بھی اب کچن سنبھال لینا چاہیے کیونکہ وہ بھی شادی کے لائق ہو گئی ہے۔ اور آپ چپ کر کے سب سن کر ان کی بات پر آمین کہتی چلی آئی۔ تو میں کیا کروں زرنا، ان کی بات ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، ویسے بھی ان کی بات اتنی ناقابل قبول بھی نہیں ہے۔ ممتاز بیگم کی بات پر مہتاب نے سختی سے اپنے آنسو ضبط کیے۔ ہاں، آپ تو ایسا ہی کہیں گی کیونکہ آپ کو ان کی ہر جائز ناجائز بات ماننے کی عادت ہو گئی ہے، مگر اب اور نہیں اماں، ہم نے بچپن سے ان کی ہر بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی سر جھکایا، صرف اس لیے کہ ہمارے سر پر نہ تو باپ کا سایہ ہے نہ کسی بھائی کا مضبوط کندھا۔ ہم اپنی مرضی سے نہ پہن اوڑھ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، تو کیا اب زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بھی ان کی مرضی سے ہوگا؟ کیا ایک خان حویلی سے نکل کر دوسرے زندان میں داخل ہو جائیں گے؟ ایک اور میر وجاہت خان کو اپنے اوپر حکم چلانے کی اجازت دیں گے؟ نہ اماں، بالکل نہیں۔ وہ سختی سے کہتی آنسو صاف کرتی کمرے سے نکل گئی تو ممتاز بیگم نے مہتاب کی طرف دیکھا، جس کے آنسو اس بات کی گواہی تھے کہ زرنب کی باتیں اس کے جذبات کی بھی ترجمان تھیں۔ میر وجاہت خان، جن کے چھوٹے لاڈلے بیٹے میر اعظم خان اپنی پسند سے شادی کر کے ممتاز بیگم کو حویلی تو لے آئے تھے، اور میر وجاہت خان نے ان کو معاف کر کے رہنے کی جگہ بھی دے دی تھی، مگر دل میں جگہ نہ دے پائے تھے، اور رہی صحیح کسر اوپر تلے کی 3 بیٹیوں اور میر اعظم خان کی اچانک موت نے پوری کر دی تھی، جس پر میر وجاہت خان نے ممتاز بیگم کو منحوس قرار دے کر نفرت شروع کر دی، اور وہ زینب کی ضدی طبیعت سے بھی نالا رہنے لگے کہ کہیں یہ بھی اپنے باپ میر اعظم خان کی طرح انہیں کوئی دھچکا نہ دے دے، اسی لیے وہ جلد سے جلد اس بوجھ سے چھٹکارا چاہتے تھے، اس چیز سے بے خبر کہ ان کا یہ فیصلہ کسی کی دل کی دنیا کو برباد کر گیا تھا۔ مہتاب، جو اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے بالکل خاموش تھی، مگر رات کی تاریکی میں وہ چھت پر بیٹھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی، وہیں خود میں گم بیٹھی تھی جب زرنب کی آواز پر مہتاب نے جلدی سے دوپٹے سے آنسو صاف کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔
मगर ज़रनब ने उसकी सुर्ख आंखों और सूजी नाक को देखकर उसके दिल का दुख समझ लिया और लब भैंच गई। चलो चले, मैं तो बस यूं ही हवा खाने ऊपर आ गई थी। मेहताब ने ज़रनब को अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर जल्दी से कहा और जाने के लिए कदम बढ़ाए, मगर ज़रनब ने उसका बाजू पकड़कर रोक लिया। आप अम्मा से तो झूठ बोल सकती हैं, अपने आंसू छुपाकर इस फैसले पर खुशी का इजहार कर सकती हैं, मगर मुझसे ये दर्द नहीं छुपा सकती। आप भी तो जानती हैं, आप कभी भी अहमद भाई के सिवा किसी और को। ज़रनब, आहिस्ता, कोई सुन लेगा। मेहताब घबरा गई। ज़रनब तलखी से बोली, यही तो असल दुख है कि इस हवेली में हमारी कोई सुनता ही नहीं, वरना आपको यूं अपने आंसू न छुपाने पड़ते। मेहताब के आंसू छलक पड़े और ज़रनब ने अजियत से अपने लब काटे। फिर बहन को गले लगाकर दिलासा दिया, अब प्लीज़ रोए मत, अभी 2 माह हैं, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। मगर मेहताब रो दी। अब कुछ नहीं होगा ज़रनब, आगा जान ने जो फैसला कर लिया है वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। और ताइमा कह रही थीं कि वो लोग मुझे पहले ही पसंद कर चुके हैं, इतवार को रस्म पूरी करने आ रहे हैं। मैं अहमद के सिवा किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। ज़रनब ने उसे खुद से अलग करके कुर्सी पर बिठाया और आंसू साफ करते हुए अज़म से कहा, ये छोटी बहन आपसे वादा करती है कि आपके ख्वाबों को हकीकत बनाएगी। अभी 2 माह हैं, आप बस उन मेहमानों का खैर मकदम करें और बाकी मुझ पर छोड़ दें। मैं अभी से आपको अहमद भाई की मुबारकबाद देती हूँ कि वो जल्द ही आपको इस हवेली से रुखसत करवा कर ले जाएंगे। मेहताब हैरान हुई, मगर ज़रनब, मगर छोड़ें, अल्लाह पर यकीन रखें और मुझ पर भरोसा करें। अब जाएं, आपके मोबाइल पर अहमद भाई की 20 मिस्ड कॉल्स आ चुकी हैं, उनसे बात करें और कह दें बस 2 माह है, सब्र कर लें, फिर वो आकर आपको ले जाएंगे। ज़रनब ने शरारत से कहा तो मेहताब के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। जाइए, अब बेचारे राह देख रहे होंगे। ज़रनब के कहने पर वो मुस्कुराकर चली गई तो ज़रनब ने गहरा सांस लिया और रेलिंग के साथ लगकर खड़ी हो गई। उसने मेहताब से वादा तो कर लिया था, मगर पूरा करना जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ था। कुछ तो करना पड़ेगा ज़रनब खान। वो बड़बड़ाई कि अचानक उसकी निगाह हवेली के गेट पर पड़ी, जहां एक काली प्राडो अंदर दाखिल होकर पोर्च में रुकी और फ्रंट सीट से उतरता मीर हारिस खान अपनी शख्सियत के जलाल से उसकी तवज्जो का मरकज बन गया। काले शलवार कमीज में, जिस पर सुनहरी ऊनी की चादर कंधों पर डाले, मोबाइल कान से लगाए, वो मर्दाना वजाहत का चलता फिरता सबूत था। उसके रेशमी सयाबाल बेतरतीब पेशानी पर बिखरे हुए, गंदमी रंगत और हल्की सी दाढ़ी में वो गजब की शख्सियत का मालिक था। ज़रनब बावजूद शदीद नफरत की ये मानती थी कि अल्लाह ने उसे खूबसूरती की दौलत से नवाजा है। ओ, शिकार तो आंखों के सामने था और मुझे खबर ही ना हुई। तो मीर हारिस खान, मैंने 22 सालों से तुझसे नफरत का रिश्ता निभाया है, मगर अब तुझसे एक और रिश्ता जोड़ने का वक्त आ गया है। मगर मैं निभाऊंगी पहला ही रिश्ता, दूसरे में अगर बेवफा कहलाई भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। ज़रनब खुद कलामी में मुस्कुरा दी। आ गया मेरा शेर, मेरा मीर। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो हॉल में खड़े मीर वजाहत खान और उनके गले से लिपटे मीर हारिस को देखकर उसका हलक कड़वा हो गया। कैसे हैं आप आगा जान? अम्मा जान बता रही थी कि मेरे जाने का आपने खूब नाजायज फायदा उठाया है, खूब बदपरीजी की है। मीर हारिस ने हंसते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिए। समझो तो तुझे वापस बुलाने का बहाना था, वरना 3 हफ्तों से सुन रहे थे कुछ दिन और, कुछ दिन और। बाप तो पहले ही तेरा शहरी बन गया था, अब तुझे भी बिजनेस के झमेलों में फंसा दिया है। मीर वजाहत खान, जो अपने बेटे मीर हैदर खान की कारोबारी मसरूफियात से नाला थे, अब मीर हारिस के भी बिजनेस में शामिल हो जाने पर ज्यादा खुश न थे, क्योंकि मीर जमीनों का काम भी देखता था और साथ बिजनेस में भी मशगूल हो गया था। अरे नहीं आगा जान, बाबा तो खुद अभी मुझे बिजनेस के झमेलों से दूर रखना चाहते हैं, मगर मैंने MBA यूं फारिग बैठने के लिए थोड़ी किया है। मुझे खुद दिलचस्पी है बिजनेस में, और सबसे अहम बात ये कि मैंने इन 3 हफ्तों में नोट किया है कि इतना बड़ा बिजनेस बाबा अकेले नहीं संभाल सकते। मीर हारिस उनके करीब सोफे पर टिक गया और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर बात की, जिस पर वो मुस्कुरा दिए। जानता हूँ मैं, इसी बात पर तो मुझे तुम पर फख्र है कि तुम बगैर कहे अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हो और खूब अच्छी तरह संभालते हो। तुम मेरा गुरूर हो। मीर वजाहत खान ने उसके कंधों पर हाथ फेरा तो वो आसूदगी से मुस्कुरा दिया, जबकि उनकी बातें सुनती ज़रनब तलखी से मुस्कुराकर मीर हारिस के चेहरे पर एक कहर भरी निगाह डालती किचन की तरफ चल दी। अच्छा, तुम रात का खाना खाओ, काफ़ी देर हो गई है, चाय साथ पियेंगे। जी ज़रूर, वो कहता किचन में आया, जहां सादिया बेगम खानसामा के साथ मेज़ पर खाना लगा रही थी और ज़रनब शेल्फ के साथ टेक लगाए पानी पी रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वो सादिया बेगम से मिला, जिन्होंने बड़ी बेताबी से अपने इकलौते बेटे को गले से लगा लिया और उसकी रोशन और कुशादा पेशानी पर बोसा दिया। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें यूं ही मुस्कुराता रखे, आमीन। उनकी दुआओं पर ज़रनब ने उसे देखा, जिसकी निगाह भी उस पर थी। कैसी हो तुम ज़रनब? वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो मुस्कुराकर बोली तो उसे काफ़ी हैरान कर गई कि बचपन से वो उसे देखता आ रहा था, जो सीधे मुंह बात नहीं करती थी और अब मुस्कुराकर बात कर रही थी।
तुम्हारे सामने हूँ, देख लो कैसा हूँ। वो तो दिख रहा है, अपनी मनपसंद जिंदगी गुजारने का गुरूर छलक रहा है तुम्हारे चेहरे पर, मगर कब तक? वो दिल ही दिल में बोली और सादिया बेगम की तरफ मुतवज्जो हो गई, जो कह रही थी कि मुझे तुम्हारे बाबा ने बता दिया था कि तुम खाना खाए बगैर आ रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारी पसंद का बनाया है। तुम खाना खाओ, तब तक मैं चाय बना लूँ। ताईजान आप रहने दें, मैं चाय बना देती हूँ। इससे पहले कि मीर जवाब देता, ज़रनब बोल पड़ी। दोनों हैरान रह गए कि जो हारिस और आगा जान के किसी काम को हाथ लगाना तो दूर की बात, उस तरफ देखती भी न थी, चाय बनाने लगी थी। अपने लिए भी बनाने लगी थी तो इनके लिए भी बना दोगी? उनकी हैरान नज़रों का एहतजाज महसूस करके बोली। ठीक है, मैं नमाज पढ़ लूँ। सादिया बेगम कहती हुई चली गई तो खानसमा भी उनके पीछे ही चला गया। मीर हारिस खाना खाते हुए पुरसकून नज़रों से जरनाब को देखने लगा, जो कि चाय का पानी रख रही थी। बाकी सब किधर हैं? चची जान, जरताशा और अलीना? मीर ने पूछा। अम्मा नमाज पढ़ रही हैं और जरताशा और अलीना टीवी देख रही हैं। मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा, तुम ठीक तो हो ना? मीर हारिस ने बिलाखिर अपनी हैरत का इजहार कर ही दिया तो जरनाब ने पलट कर देखा। जो पानी का गिलास लबों के साथ लगाए उसे जांचती नज़रों से देख रहा था तो वो घबरा गई। हाँ, मैं ठीक हूँ, क्यों? जरनाब खान का ये रूप कुछ हजम नहीं हो रहा, अचानक इतना बदलाव? वो नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ उठ खड़ा हुआ। हजम तो मुझे भी नहीं हो रहा तुम्हारे साथ इस तरह का रवैया रखना, पर क्या करूं, मजबूरी है। वो दिल में बोली, मगर उसे देखकर मुस्कुराती हुई उल्टा उससे सवाल कर गई। क्यों, आपको मेरा ये बदला रवैया अच्छा नहीं लगा क्या? बुरा तो मुझे तुम्हारा वो रवैया भी नहीं लगता था। मीर हारिस उसके करीब आकर दिलकशी से मुस्कुराया तो वो नासमझी से उसे देखने लगी, जो किचन में आते ही महताब की तरफ मुतवज्जे हो गया था। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मीर भाई? कब आए आप? बस अभी कुछ देर पहले। लगता है तुम्हें भी किचन में जरना की चाय की खुशबू ले आई, जो मेरे लिए बना रही है। वो मेरे लिए पर जोर देता मुस्कुराकर महताब की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवा गया। जरना चाय और आपके लिए? वो हैरत से उसे देखने लगी, जो चाय 3 कपों में डाल रही थी। जरनैब इसकी बात पर चढ़ गई। तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई जो हर कोई आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रहा है, जैसे पता नहीं कौन सा दुनिया से निराला काम कर दिया हो। मैंने अपने लिए बनानी थी तो इनके लिए भी बना दी, मगर लगता है गलत कर दिया। वो पाँव पटकती हुई किचन से वॉकआउट कर गई थी। महताब ने मीर की तरफ देखा, जो कंधे उचका गया और चाय की तरफ मुतवज्जे हुआ। नाइस, मैं तो समझा था तुम्हारी बहन सिर्फ दिल ही अच्छा जलाती है, मगर वो तो चाय भी अच्छी खासी बना लेती है। मीर हारिस मुस्कुराकर बोला और कप पकड़े किचन से निकल गया। अगली सुबह जरनब कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई थी। लाख महताब और मुमताज़ बेगम के तरले मिन्नतों को नज़रअंदाज करती वो सीढ़ियाँ उतरती हॉल में आई, जहाँ वजाहत खान अखबार पढ़ने में मशगूल थे और अलीना और अनाब स्कूल जाने के लिए तैयार ड्राइवर की गाड़ी निकालने का इंतज़ार कर रही थीं। जरनब नीचे आई तो मीर वजाहत खान ने एक उचटती नज़र डाली, जो हैंडबैग लटकाए किताबें हाथ में पकड़े खड़ी थी। सादिया बेगम, लगता है आपने किसी को बताया नहीं कि स्कूल सिर्फ अनाब और अलीना ही जाया करेंगी। वो अपने आगे टेबल पर चाय रखते हुए बोले, मगर सुनाया जरनब को, जिसने मुश्किल से खुद को कुछ कहने से रोका। सादिया बेगम ने मुमताज़ बेगम को देखा, जो बेबसी से उनको ही देख रही थी। वो आगा जान, जरनब का ज़रूरी टेस्ट था, तो जब पढ़ाई जारी ही नहीं रखनी तो ज़रूरी टेस्ट की क्या अहमियत? उन्होंने अखबार तय करके मेज़ पर रखा। आपको किसने कहा कि मुझे पढ़ाई जारी नहीं रखनी? जरनब ज़्यादा देर खुद पर काबू ना पा सकी और बराह रास्त मीर वजाहत खान से मुखातिब हुई। ये मेरा फैसला है, लड़की जितना पढ़ना था पढ़ लिया। पहले ही इस पढ़ाई ने तुम्हारा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और पढ़कर हमारे सरों पर खाक डालना चाहती हो तुम। वो गुस्से में आए तो जरनब मुमताज़ बेगम की 1000 घूरियों को नज़रअंदाज करती बोल उठी। क्या खाक डाली है मैंने आपके सरों पर? मतलब क्या है आपका इस बात से? ज़रूरी नहीं जैसे आपने अपने बेटे मीर अज़ाम की तरबियत की हो, वैसे ही मेरी माँ ने मेरी की हो। वो उनकी आंखों में देखती उनके जलाल को आवाज़ दे गई थी। खामोश बेअदब लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? वो जलाल में आ गए तो महताब ने उसको बाजू से पकड़कर अंदर ले जाना चाहा, मगर वो अपना बाजू छुड़ा गई। तो सादिया बेगम के इशारे पर महताब मीर हारिस को बुलाने उसके कमरे की तरफ दौड़ी, जो सो रहा था। इससे पहले कि हमारा हाथ उठ जाए तुम पर, दफा हो जाओ हमारी नज़रों से। हम बगावत देख चुके हैं तुम्हारी आंखों में। अब तुम इसी हवेली में रहोगी, जितना खर्चा करना था कर लिया। कौन सा खर्चा किया है आपने हम पर? और वैसे भी अगर किया भी है तो इस जायदाद पर हमारा भी इतना ही हक है जितना और लोगों का। जरनब, जाओ यहाँ से, सादिया बेगम ने मीर वजाहत के गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे की तरफ देखकर कहा, मगर वो अनसुनी कर गई।
कौन सा हक लड़की, सारी जायदाद मेरे नाम है, दिल करे तो किसी को फूटी कौड़ी भी ना दूं। कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाला? दफा हो जाओ हमारी नजरों से, हम तुम जैसी बेअदब लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये तरबियत की है तुमने इसकी कि इसे हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आपके वो मुमताज बेगम पे भड़के जो बेबसी से सर झुका गईं। उनसे क्या कहते हैं, मुझसे कहें जो कहना है। बकवास बंद करो लड़की। इससे पहले कि उनका हाथ उठता और उसके गाल सुर्ख करता, मीर हारिस जल्दी से दोनों के बीच में आ गया। आगा जान प्लीज आप रिलैक्स करें, तुम कमरे में जाओ, वो सख्त लहजे में जरनब से बोला तो वो गुस्से से उसे देखने लगी जो वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में बगैर बाल संवारे कच्ची नींद से जागा था। मैं क्यों? जरनब ने पलटकर कहा तो वो मजीद सख्ती से बोला कि मैंने कहा कमरे में जाओ। अब के वो बैग और किताबें वहीं फेंकते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। मेहताब भी उसके पीछे गई। देखा तुमने उस बेअदब लड़की को? मैं उस दिन से डरता था। मैंने कहा था तुम्हें कि मुझे इस लड़की में बगावत की बू आ रही है, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो आज मीर वजाहत खान के सामने खड़ी हो गई। मेरे बेटों की हिम्मत नहीं मुझसे आंख मिलाकर बात करने की, और ये लड़की। आगा जान प्लीज रिलैक्स। अम्मा जान आप पानी लाएं आगा जान के लिए। अनाब और अलीना बेटा तुम लोग जाओ, स्कूल देर हो रही है। वो पहले सादिया बेगम से फिर गुमसुम खड़ी उन दोनों से मुखातिब हुआ तो दोनों बाहर की जानिब चल दी। मीर ने मुमताज बेगम को देखा जो आंसू साफ करती शर्मिंदगी से सर न उठा पा रही थी। कसूर तो सारा मीर जाम खान का था, जिसने एक बदजुबान औरत को लाकर हमारे सरों पर बिठा दिया था, तो औलाद भी वैसी ही निकलेगी ना। अब इस लड़की का कॉलेज जाना भी बंद, और ये सुबह से एक कदम भी बाहर नहीं निकालेगी। मेहताब के साथ इसकी भी रुखसती की तैयारी करो। आगा जान की बात पर वो चौंका था, फिर लम्हा भर को मुमताज बेगम की तरफ देखा जो सर थाम के बैठ गई थीं। मीर की निगाहें जरनाब की किताबों पर टिक गईं। देख लिया तुमने अपनी बदतमीजी का अंजाम। क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? तुम हमारी जिंदगियां आसान नहीं बल्कि मुश्किलों में डाल रही हो। मुमताज बेगम रोते हुए बोली तो उसे मुट्ठियां भींचने पर मजबूर कर गईं। अम्मा क्या हो गया है आपको? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? वो उनके रोने से तंग आकर बोली तो मुमताज बेगम को मजीद गुस्सा दिला गईं। देखो जरा इसको, इतना कुछ करके भी मुझसे पूछ रही है कि इसने क्या किया है। इतनी बदतमीजी अगर तो अपने बाप के साथ करती ना, तो उन्होंने भी तुझे घर से बाहर निकालने में एक लम्हा ना लगाना था। फिर भी शुक्र करो कि उन्होंने हमें धक्के देकर इस घर से नहीं निकाला, वरना तुम लोगों को लेकर मुझे इस जुए के अड्डे पर जाना पड़ता जहाँ से तुम्हारा बाप मुझे खरीद कर लाया था मेरे नाम नहाद बाप से। शुक्र करना चाहिए हमें कि आगा जान ने हमें इस घर में पनाह दी हुई है। और कौन सी जायदाद की बात की तुमने? शर्म आनी चाहिए जरनाब, मैंने ऐसी तरबियत तो नहीं की तुम लोगों की। सादिया भाभी के बच्चों की ऐसी ही तो तारीफ नहीं होती पूरे खानदान में। मीर को देखा है, लड़का होकर भी इसका सर नहीं उठता इनके सामने। उन्होंने शर्मिंदा करना चाहा, मगर जरनब जो पहले ही गुस्से में थी, मीर की मिसाल सुनकर भड़क उठी। आखिर उसको सर उठाने की जरूरत भी क्या है? सब कुछ बिन मांगे मिल जाता है। अपनी मनपसंद जिंदगी गुजार रहा है, कोई रोक टोक नहीं। इकलौता चश्मो चराग है इस हवेली का। सर उठाने की जरूरत तो हम जैसों को होती है अम्मा, जिनके साथ शुरू दिन से ही नाइंसाफी हो रही हो। मेहताब इसे बोलो दफा हो जाए यहाँ से। क्यों नहीं समझती है? इसका जो मन इसे बगावत पर उकसा रहा है ना, इसकी सुनी तो पल्ले कुछ नहीं रहना। आगा जान ने कह दिया है कि मेहताब के साथ जरनब की भी रुखसती होगी। मुमताज बेगम की बात पर मेहताब ने ठिठक कर जरनब को देखा जो तलखी से मुस्कुराई। इसके अलावा वो कर ही क्या सकते हैं, मगर इनको नहीं पता कि इस बार इनके आगे मुमताज बेगम या मेहताब खान नहीं बल्कि जरनब खान है। वो सख्त लहजे में कहती कमरे से निकल गई। मुमताज बेगम ने सर थाम लिया। उनको अंदाज़ा हो रहा था कि वो बागी हो गई है। वो चाय पीने के ख्याल से किचन की तरफ जा रही थी कि इसे रास्ते में ही रुकना पड़ा। रुकने की वजह मीर हारिस था जो इसे घूर रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर लॉन में वेट कर रहा हूँ, वो सख्त लहजे में बोलता चला गया। जरनब ने कुछ लम्हे लब भींचकर सोचा, फिर चाय का इरादा कैंसिल करती बाहर लॉन में आई जहाँ वो टहलता हुआ इसी का इंतजार कर रहा था। क्यों बुलाया मुझे? वो इसके सामने जा खड़ी हुई। खराजे तहसीन पेश करने के लिए। क्या आप मेरे हाथों से कबूल करेंगी? वो तंजिया चबा चबा कर बोला तो जरनब ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। आई कांट बिलीव दिस कि तुम अब आगा जान से इतनी बदतमीजी से बात कर सकती हो। मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की, जो सच था वो बयान किया है। अगर उनको ये बदतमीजी लगी हो तो मेरा क्या कसूर? वो सुकून से बोलती उसे हैरान कर गई। अपने से 3 गुना उम्र के इंसान से जो रिश्ते में दादा लगते हैं, उनके सामने खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर ऊंची आवाज में बात करना कौन से अदब के जुमरे में आता है मिस जरनब खान? बताइएगा मुझे जरा। उन्होंने कितना गलत किया और उनका रवैया? बात गलत या सही की नहीं कर रहा मैं, बात तमीज़ और अदब की कर रहा हूँ कि हमारे बड़े चाहे गलत भी हों, हमें उनका लिहाज हर सूरत करना चाहिए। क्या हमें ज़ेब देता है कि हम उनके आगे खड़े हों?
मैं जानता हूँ आगा जान का रवैया शुरू से ही अच्छा नहीं रहा तुम सबके साथ, क्योंकि वो अभी तक चाचा की गैर खानदान में शादी करने के फेल को कबूल नहीं कर पाए, मगर तुम्हारा रवैया उनको और मजीद बदजन करवा रहा है तुम लोगों से। चची जान को देखा है कभी उनके आगे सर तक नहीं उठाया? उनकी चुप का ही खमियाजा भुगत रही हूँ मैं। अगर पहले दिन से उन्होंने अपने और हमारे हक में आवाज़ बुलंद की होती तो आज मुझे ये सब ना करना पड़ता। वो तेजी में बोली तो मीर हारिस नफ़ी में सर हिलाने लगा कि मुर्गे की वही एक टांग, दिमाग नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? महताब भी तो है, उसने कभी ऐसा नहीं किया। वो भी अम्मा की तरह बुज़दिल है, और जरनब बुज़दिली नहीं, अपना हक लेना जानती हूँ मैं। ओह माय गॉड, वो मुट्ठी भैंस क्या, वरना दुर तो कर रहा था इस बेवकूफ़ लड़की को 2 लगा दे ताकि अकल ठिकाने आ जाए। अच्छा तो 5 सालों से लड़ रही हो ना तुम अपने हक के लिए, इस जबान का इस्तेमाल करके कितना हासिल कर लिया अपना हक, जरा बताना। उसकी बात पर वो गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ रुख बदल गई। मैं बताता हूँ, तुम्हारी इस जबान ने तुम्हें और कोई हक दिया हो या ना दिया हो, इस घर से रुखसत होने का हक जरूर दे दिया है। आगा जान कह चुके हैं कि तुम्हें इस घर से बहुत जल्द रुखसत कर दिया जाए। अब तो खुश हो गई होगी, अब जाके अपने हक के लिए अगले घर में लड़ना। मीर हारिस तंजिया बोला तो वो तब गई। और मैं जैसे ये सब मान लूंगी, वो कौन होते हैं मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? मैं इस हवेली से कहीं नहीं जाऊंगी, याद रखिएगा आप। वो तेज लहजे में बोली तो इतनी संजीदा सूरत हाल में भी उसके चेहरे पर महजूज मुस्कुराहट आ गई। जन्नब ने हैरानी से उसके मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखा। मैं भी तो तब से यही चाह रहा हूँ कि तुम सारी उम्र इसी हवेली में रहो, और इसीलिए तुम्हें आगा जान से बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए तुम दोनों का एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों, आपके लिए क्यों ज़रूरी है? उसके सवाल पर मीर ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, फिर गहरा सांस भरा और बोला, वो इसलिए कि ज़ैनब आज़म खान मेरी आंखों का एक ख्वाब है जो मैं कई सालों से देख रहा हूँ, और उस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए मुझे तुम्हारी और आगा जान दोनों की रजामंदी चाहिए। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, और आगा जान की रज़ा के बगैर मैं तुम्हें पाकर सुकून से नहीं रह सकूँगा। इसीलिए चाहता हूँ कि तुम दोनों के ताल्लुकात अब बेहतर हो जाएं। मीर की बात पर वो कुछ पल के लिए शशदर रह गई, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता दिमाग ने काम करना शुरू किया तो उसे अपने लिए बगैर कोशिश के ही एक ऐसा रास्ता मिल गया जो उसे कामयाब कर सकता था, बल्कि उन लोगों से बदला भी जिनकी वजह से उसने अपनी माँ की नाराज़गी और लान तान सही। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरी जान? जो उसके तासुरात से कुछ अख्स न कर पाया था पूछ बैठा। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। जरनब जल्दी से नफ़ी में सर हिला गई, वरना उसका दिल तो कहने को चाह रहा था कि जो वो इतने दिनों से सोच रही थी और करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, वो इतनी आसानी से हो गया। आई नो ये मौका नहीं है ये सब कहने का, मैं किसी अच्छे मौके की तलाश में था ताकि अपने दिल की सबसे खास बात और सबसे खूबसूरत एहसास जो सिर्फ तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, ये सब इस तरह ना बताता, मगर हालात ऐसे हैं कि तुम्हें बताना नागुज़ीर हो गया है। मैं तुम्हें खोने का रिस्क किसी सूरत नहीं ले सकता, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जानता हूँ वो कुछ ज्यादती कर जाते हैं, मगर तुम उनके रवैये को समझ नहीं सकी। वो अपनी रवायात और उसूलों की वजह से सख्ती करते हैं, वरना वो इतने सख्त नहीं हैं। मीर ने देखा तो वो कुछ नागवारी से रुख मोड़ गई। उसने गहरा सांस लिया और बोला, ओके, तुम उनकी तरफ से अपना दिल साफ ना करो, पर इतना एहसान कर दो कि अब तुम चुप रहोगी। तुम्हारा जो भी काम होगा वो मैं करूँगा। तुम जानती हो पहले भी मैंने तुम्हारे हर मामले में सपोर्ट किया है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो या कुछ और। अब भी मैं किसी सूरत तुम्हारी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश की राह में रुकावट नहीं आने दूंगा, लेकिन इसके लिए कुछ वक्त और सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जानती हो वो चाहे मुझसे जितना भी प्यार करते हो, मगर मिजाज के खिलाफ बात करने पर वो मेरी बात भी नज़रअंदाज कर जाते हैं। वो तो सब ठीक है, मैं ऐसा करूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। शर्त? वो हैरान हुआ। हाँ, मैं उनकी हर कड़वी कसैली बात बर्दाश्त करूंगी, उनके हर नाजायज़ फैसले पर भी आवाज़ नहीं उठाऊंगी, मगर मुझे प्रोटेक्शन चाहिए ताकि सुकून से रह सकूं और मुझे किसी चीज़ का खौफ ना रहे। मैं समझा नहीं, कैसा प्रोटेक्शन चाहती हो तुम? निकाह करना पड़ेगा आपको मुझसे। जरनब जितना सुकून से बोली थी, मीर हारिस को उतना ही जोर का झटका लगा और वो बेयकीनी से उसे देखने लगा। यही एक तरीका है मुझे प्रोटेक्शन देने का, क्योंकि मैं आपके भरोसे पर चुप बैठ जाऊं और बाद में कुछ हाथ ना आए तो कहाँ जाऊंगी। इसीलिए ये सब सिक्योरिटी के लिए कह रही हूँ, मगर ये बात सिर्फ आप में और मुझ में रहेगी। बाकी आप हालात बेहतर करने की कोशिश करते रहिएगा, जब मुनासिब वक्त आएगा सबको बता देंगे। वो उसे कुछ बावर करवाती अंदर की जानिब बढ़ गई तो मीर ने कब का रुका हुआ सांस बाहर निकाला और मुस्कुरा दिया।
अपने नाम की हथकड़ी ही पहनानी है ना तो पहना दूंगा, क्योंकि तुम्हारा इस हवेली से रुखसत होना मुझे बहुत महंगा पड़ेगा, होने वाली मिसेस मीर। वो बड़बड़ाया और हंस दिया, जबकि खिड़की के पास खड़ी जरनाब के लबों को तल्ख मुस्कुराहट छू गई। तुम नहीं जानते मीर, तुमने खुद अपने लिए अपनी बर्बादी का रास्ता मुंतखब किया है, जो तुम्हारे लिए सिर्फ जिल्लत और रुसवाई का बाइस बनेगा। वो जब सुबह सोकर उठी तो मेहताब ने उसे तैयार होने और कहीं जाने का कहा। वो हैरान होकर तैयार हुई और जब नीचे आई तो इन तीनों को तैयार देखकर सवालिया नजरों से मेहताब की तरफ देखने लगी, जिसने उसकी आंखों में उलझन देखकर कहा, तुम्हें तो पता है सर्दियां शुरू होने वाली हैं, इसलिए मीर भाई ने कहा है कि वो हम चारों को आज शॉपिंग पर लेकर जाएंगे। चलो, अब वो कब से गाड़ी निकालकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो चारों बाहर निकले, जहां मीर हारिस ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पहने, आंखों पर ब्लैक ग्लासेस लगाए और मोबाइल कान से लगाए, गाड़ी के साथ टेक लगाए किसी से बात कर रहा था। ओके सर, फिर मिलते हैं 2 घंटे बाद। मेरा नहीं ख्याल कि अब मुझे दोबारा कुछ भी कहने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके बाय। वो इशारे से उनको बैठने का कहता हुआ खुद भी मोबाइल ऑफ करके फ्रंट सीट पर बैठ गया। अलीना उसके बराबर बैठ गई और फिर पूरे रास्ते वो उन तीनों से कोई ना कोई बात करता आया, मगर जरनब से ना तो मुखातिब हुआ और ना ही उसकी तरफ देखा। जरनब उसके रवैये पर शशो पंच में पड़ी, उसके अंदाज को सोचते हुए इतनी गहरी सोचों में डूबी कि सबको भूल गई और चौंकी तब जब गाड़ी एक बड़े शॉपिंग मॉल के सामने रुकी और मीर उनसे मुखातिब हुआ। तुम तीनों अंदर जाओ, जो लेना है ले लो, जो खाना होगा वो भी खा लेना। ये कुछ पैसे और एटीएम कार्ड है। मैं और जरनब कुछ देर बाद तुम लोगों को ज्वाइन करेंगे। मुझे अपने एक दोस्त से मिलना है और जरनब को उसकी बीवी से मिलवाना है। आई थिंक तुम लोगों को परेशानी नहीं होगी क्योंकि तुम लोग पहले भी यहाँ आ चुके हो। जी भाई। तीनों ने सर हिलाया और गाड़ी से उतर गई। हारिस ने जरनब की तरफ देखा, जो हैरानी से उसी को देख रही थी। तुम आगे आ सकती हो और जरा जल्दी करो, वो सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। मीर की बात पर वो चौंकी, फिर गहरा सांस भरती आगे बैठ गई और अगले 20 मिनट में वो लोग मीर के दोस्त साद के घर के, जहां साद की बीवी समेत उसके और दोस्त और निकाह ख्वाह भी मौजूद था। जरनब ये सब देखकर 2 पल के लिए सुन हो गई कि जो फैसला उसने सिर्फ मीर वजाहत खान को नीचा दिखाने के लिए किया था, अब उसको हकीकत का रूप देने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए थी और अपनी पूरी हस्ती दाव पर लगानी थी कि एक ऐसे शख्स को अपना आप सौंपना जिसके साथ आप 22 साल से नफरत का रिश्ता निभा रहे हों। उसके कदम लड़खड़ाए, मगर हारिस ने उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया और नरमी से बोला, मेरी तरह तुम्हें भी घर वालों के बगैर ये कदम उठाना मुश्किल लग रहा है, मगर जब फैसला कर लिया है तो अब इसे पूरा भी करना है, ताकि ना तुम्हें कोई खौफ रहे और ना मुझे तुम्हारे बिछड़ने का डर। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम पर कोई भी इल्जाम नहीं आने दूंगा, सब कुछ अपने सर लूंगा। उसकी आंखों में देखता वो मजबूत लहजे में बोला तो ज़ैनब को निगाहें चुराने पर मजबूर कर गया। यही तो मैं चाहती हूँ मीर, कि तमाम इल्जाम तुम अपने सर पर लो। वो दिल ही दिल में बोलती उसके साथ कदम बढ़ा गई। क्या बात है ज़ैनब, मैं देख रही हूँ पिछले 2 दिनों से तुम बड़ी गुमसुम हो। ज़ैनब सोचों के ताने बाने में उलझी थी कि मेहताब की बात पर गड़बड़ा गई। नहीं तो तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, बस जरा सुस्ती सी छाई हुई है। तुम बोलो। अपनी तरफ इसका ध्यान हटाते हुए वो बोली, जल्दी करो, वो लोग मुझे देखने आ रहे हैं और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऊपर से अहमद बार बार मुझसे यूनी ना आने की वजह पूछ रहा है और ये भी कि वो कब घर वालों को हवेली रिश्ते के लिए लाएं। आप घबराइए मत और कल एक आम रूटीन की तरह इन लोगों से मिलें और परसों से यूनी जाने की तैयारी रखें। परसों से यूनी पर कैसे? आगा जान ने उस दिन क्या कहा था कि अब हम... कोई सवाल जवाब नहीं, बस आप यूनी जाने की तैयारी रखें और मैं अभी आई। वो घड़ी की तरफ देखते हुए उठी जहां सुइयां 8 और 9 के दरमियान थी। अब इसका मकसद मीर हारिस से मिलकर उसे आगा जान के सामने खड़ा करना था और उसे पूरा यकीन था कि वो ऐसा कर सकती है। इन्हीं सोचों में उलझी वो आगे से आते मीर से बुरी तरह टकरा गई कि अगर वो इसे थाम न लेता तो वो ज़मीन पर गिर जाती। ओह सॉरी, मैं देख नहीं पाई। वो इसकी गिरफ्त से निकली तो वो आहिस्तगी से बोला कि तुम 2 दिनों से कहाँ छुपी हुई हो, नज़र ही नहीं आई। यहीं थी, वो मध्यम लहजे में बोली। क्या बात है, तुम कुछ अपसेट लग रही हो। मैं 2 दिनों से सोच सोच के पागल हो गई हूँ कि जो मैंने किया क्या वो सही फैसला था, और जब सबको पता चलेगा, खास तौर पर आगा जान को, तो वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और हो सकता है आपको उनकी सख्ती और इस हवेली से दूरी बर्दाश्त करनी पड़े। मैंने आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं और ये बात मुझे शर्मिंदा करती है। इतनी शानदार एक्टिंग पर उसने खुद को सराहा। तुम पागल हो, ऐसा सोचा भी कैसे कि मुझे तुम्हारी वजह से कोई मुश्किल आ सकती है? देखो, मैं नहीं जानता कि बाद में इस फैसले के असरात क्या होंगे और मुझे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, पर मैं इतना जानता हूँ कि इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि 2 दिनों से मैं बहुत पुरसुकून नींद सो रहा हूँ। वरना तो मुझे डर लगा रहता था कि आगा जान कोई ऐसा फैसला ना कर दें जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाएं, पर अब ऐसा कोई डर और खौफ नहीं है। मीर हारिस, ये तो तुझे आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये फैसला कैसे तुम्हारी नींदों को हराम करता है। वो दिल ही दिल में सोचती, मगर जाहिर मुस्कुरा दी। वैसे मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुमने खुद मुझे निकाह का कहा, क्योंकि अगर पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो तुम्हारा रवैया कुछ अच्छा नहीं रहा मेरे साथ।
मीर की बात पर वो जरा सा घबराई, मगर मीर मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ चुका था। उसने उसकी घबराहट को शर्म और हया समझा था, पर हकीकत में वो तो बस आगा जान का गुस्सा उस पर निकालती थी, वरना वो उसकी बहुत इज्जत करती थी। मीर के मुस्कुराते लहजे पर वो फौरन बात बदल गई और बोली कि उसे उससे कुछ बात करनी है। मीर ने दिलचस्पी से कहा, हाँ करो। तो उसने याद दिलाया कि आपने कहा था मैं आगा जान से बहस नहीं करूंगी, बल्कि आप खुद इजाज़त दिलवाएंगे। इस पर मीर ने सोच भरे अंदाज में उसे देखा और बोला, जब तुमने एडमिशन लेना था तब तुम्हें पूरी सपोर्ट दी थी, अब तो बीदी हो और पहली फरमाइश है तो इनकार कैसे हो सकता है? तुम्हारी हर बात सर आंखों पर। मैंने एक दो बार आगा जान से बात की, मगर उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। अब जाकर बात करता हूँ और तुम सुबह तैयार रहना। उसके लहजे पर वो खुशी से मुस्कुरा दी। और शुक्रिया कहा तो मीर हंसते हुए बोला कि सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ और भी देना पड़ेगा। इसके शरारती इशारे समझकर वो शर्माते हुए हाथ छुड़ाकर भाग गई और मीर कहका लगाकर बोला, याद रखना तुम्हें इस शरारत की सजा जरूर मिलेगी। इसकी धमकी पर वो पलटकर हंसती और वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया, मगर अगर वो पलटकर देख लेता तो चौंक जाता, क्योंकि वो नफरत भरी निगाहों से उसकी पुश्त को देखते हुए आइंदा के बारे में सोच रही थी। हारिस ने आगा जान को भी राजी कर लिया था और वो इस शर्त पर मान गए थे कि सिर्फ 2 माह तक शादी के बाद दोनों अपने अपने ससुराल जाकर तालीम मुकम्मल करेंगे। मेहताब को देखने वाले राजी हो गए और हवेली वाले भी लड़का देखाए और मीर वजाहत खान भी हाँ कराए। दोनों तरफ से हाँ होने के बाद ये तय पाया कि मेहताब की शादी के साथ ही ज़रनब का रिश्ता भी तय किया जाए, ताकि दोनों बहनों की शादी एक साथ हो। मेहताब जोश से शादी की तैयारियों और ज़रनब के रिश्ते की कार्रवाइयों में मसरूफ़ थी, मगर ज़रनब की खामोशी सबको खटक रही थी। वो जो छोटी बात पर भी मीर वजाहत खान के आगे डट जाती थी, अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले पर खामोश क्यों थी? सिर्फ हारिस इसकी इस खामोशी को समझ रहा था। मीर जो 2 दिन से शहर में था, आज गाँव लौटते हुए आइंदा के बारे में सोच रहा था। उसे ज़रनब के रिश्ते की तलाश की खबर लग चुकी थी और वो जल्द ही इस मामले पर से पर्दा उठाना चाहता था, मगर ज़रनब अभी ऐसा नहीं चाहती थी और वो ये भी ना समझ पा रहा था कि आखिर क्यों। वो मीटिंग के सिलसिले में शहर आया था और आज खाने के बाद गांव निकल पड़ा। हालांकि हैदर खान ने रोकने की कोशिश की, मगर वो बहाने से निकल आया, क्योंकि उसका दिल उस दुश्मन जान को देखने के लिए बेकरार था। उसे हैरत हो रही थी कि दिल पहले कभी इतना नहीं मचला जितना अब। शायद अब मलिकियत का एहसास था जो उसे बेचैन कर रहा था, और वो अपने जज्बात के हाथों मजबूर हो गया था। हालांकि वो जानता था कि उसके जज्बात यकतरफा हैं, मगर उसे यकीन था कि एक दिन वो उसे भी मोहब्बत पर मजबूर कर देगा। वो बड़बड़ाया कि अब तक तो वो सो चुकी होगी और टाई की नॉट खोलते हुए कमरे में दाखिल हुआ, मगर अगले ही लम्हे ठिठक गया, क्योंकि सामने ज़रनब खड़ी थी जो पिंक शॉर्ट नाइटी पहने हुए थी। उसकी सफ़ेद नाजुक पिंडलियां और स्लीवलेस लिबास से उसके बाजू झलक रहे थे। गले में एक छोटा सा स्कार्फ डाले वो किचन से निकल रही थी, और उधर आगाजान हारिस की गाड़ी की आवाज़ सुनकर नीचे आ रहे थे। मीर ने फौरन उसे बाजू से पकड़कर किचन में खींच लिया। ज़रनब जो अचानक इस अफ्ताद पर घबरा गई थी, संभलते ही चीखने लगी, मगर मीर ने उसके लबों पर हाथ रखकर कहा, खबरदार आवाज़ न निकालना। ज़रनब ने हाथ झटकते हुए कहा कि अगर आपने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो मैं सीधी आपकी अम्मी के पास चली जाऊंगी। उसके लहजे पर मीर ने गुस्से से कहा कि तुम इस वक्त और वो भी इस हुलिये में बाहर क्यों निकली हो? ज़रनब ने घबरा कर कहा कि हारिस आया है ना, कहाँ है वो? तभी आगा जान की आवाज़ गूंजी और ज़रनब खामोश हो गए। मुलाजिमा ने जवाब दिया कि जी बड़े खान, मीर बाबा आ गए हैं और अपने कमरे में फ्रेश हो रहे हैं। आगा जान ने कहा कि ठीक है, वो फ्रेश होकर आएं, तब तक मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। आगा जान के अल्फाज पर मीर झुंझला गया और गुस्से से ज़रनब को देखा, जो या तो वाकई नादिम थी या नादिम होने का ढोंग कर रही थी। मीर ने सख्त लहजे में कहा कि अगर आगा जान ने तुम्हें इस हुलिये में देख लिया होता तो तुम्हें बदतमीज के साथ साथ बेशर्म भी करार देते। तुम जानती हो कि आगा जान को तो औरतों के सर पर दुपट्टा ना हो तो गुस्सा आ जाता है, फिर इस हुलिये में देखकर वो आपे से बाहर हो जाते। तुम्हें क्या जरूरत थी इस हालत में बाहर निकलने की? जरा ये भी सोच लेती कि नौकर जाग रहे होते हैं। ज़रनब ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा, सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा, दरअसल भूख लगी थी इसलिए मैं बगैर सोचे बाहर आ गई कि इस वक्त कोई जाग भी सकता है। उसकी शर्मिंदगी भरे लहजे ने मीर का गुस्सा ठंडा कर दिया और उसने नरमी से कहा कि आइंदा एहतियात करना। वैसे मुझे नहीं पता था कि मोहतरमा इतनी शब बेदार हैं। शाहाना लिबास में मलबूस। वो जब गहरी निगाहों से उसे देखने लगा तो वो खुद में सिमटने पर मजबूर हो गई। मीर ने शरीर लहजे में कहा, माना कि तुम्हें मेरे सामने इस तरह रहने का हक है, मगर जब तक रुखसती नहीं हो जाती ज़रा एहतियात लाजिम है। इंसान इतने हसीन नज़ारों से अपनी निगाहें नहीं हटा सकता। फिर बहकने का इल्ज़ाम हम पर मत डालना। उसके संजीदा लहजे ने उसे खफा कर दिया और वो पीछे हटकर दीवार के साथ लग गई।
मीर उसके सुर्ख चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो और खूबसूरती का टैक्स तो बनता है। उस दिन तुम मुझे कुछ दिए बगैर ही भाग गई थी। हालांकि आगा जान को मनाना कोई आसान काम नहीं था। उसकी धमकी पर वो ताई जान को आवाज देगी। वो मजीद मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ जरूर आवाज दो, ताकि अम्मा जान से पहले आगा जान की एंट्री हो जाए। इस पर वो मजबूरन मुज़ाहिमत करने लगी, मगर इस कोशिश में और करीब आ गई। मीर ने एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे करीब किया और उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। फिर निहायत नरमी से उसकी रोशन पेशानी पर अपने प्यार का पहला बोसा दिया। उस लम्स पर वो कांप सी गई और चाहकर भी दूर ना हो सकी। फिर वो उसकी आंखों को चूमने लगा और इससे पहले कि मजीद आगे बढ़ता, बाहर से आगा जान की आवाज आ गई, जो फजलुद्दीन को अपने कमरे में बुला रहे थे। मीर ने तेजी से कहा, मैं आगा जान को उनके कमरे में ले जाता हूँ, तुम किचन से निकल जाना, गुड नाइट। वो एक गहरी नजर डालकर चला गया और जरनाब अपनी नामालूम कैफियत से बाहर निकली और जेर लब कोसने लगी कि कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। ये सब मेरी गलती है जो उसके आगे कमजोर पड़ गई। आइंदा उसे मौका ही ना दूंगी। मैं तो उसे मासूम समझती थी, मगर वो तो लफंगा निकला। वो अपनी असल हालत में आ चुकी थी और अभी की कैफियत को छुपाने के लिए दिल ही दिल में उसे गालियां देने लगी। अगले दिन इतवार की सुबह सब देर से उठे और जब जरनब 10 बजे नाश्ते के लिए किचन में आई तो सब लोग मीर वजाहत खान के सिवा नाश्ता कर रहे थे। अलीना को बुलाने भेजा गया था, मगर वो सोई हुई थी। जरनब जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो मुमताज़ बेगम ने उसे देखकर कहा, आ जाओ जरनब, अलीना को बुलाने भेजा था मगर तुम सो रही थी। उनके बोलने पर हारिस ने रुख मोड़ा और उसे देखा, जो ब्लू सूट में सादा से जोड़े में भी दिल के तार हिला रही थी। सादिया बेगम ने महताब से कहा, बेटा नाश्ता कर लिया हो तो मुमताज़ से कह देना चाय आगा जान को दे दें और इतला दे देना कि हम ड्राइवर के साथ शहर जा रहे हैं। जरनब तुम भी साथ चलना। महताब की बात सुनकर मीर, जो अम्मा की बात पर रिलैक्स हुआ था, फिर गुस्से में आ गया। सादिया बेगम ने भी कहा, हाँ जरनब तुम भी चलो, मगर उसने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, मेरा मूड नहीं है, आप लोग जाएं, मैं लंच बना लूंगी। इस पर मीर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे छुपाने के लिए उसने कप को मुंह से लगाया। जब सब निकल गए तो उसने भरपूर नज़रों से जरनब को देखा, जो मुसलसल देखे जाने से खफा हो गई और झंझलाकर बोली, क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हैं? इसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया और बोला, अगर तुम मुझे इग्नोर करोगी, एक नज़र भी न डालोगी, तो मैं तो देखूंगा ना। उसने कहा, कब इग्नोर किया है आपको? इस पर मीर करीब आकर उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया तो वो पीछे को हो गई। मीर शरारत से बोला, ये नॉन फेयर है, कोई भी देख सकता है। फिर इसके हाथ से चाय का कप लेकर अपने होठों से लगा गया और बोला, सुना है ऐसा करने से मोहब्बत बढ़ती है, तो सोचा ट्राई कर लूं। इस पर जरनेब हैरान रह गई और दिल ही दिल में उसकी बेवकूफ़ी पर हंस दी कि मोहब्बत होगी तो बढ़ेगी ना मीर, नफरत तो ज़रूर बढ़ती रहेगी। उसकी खामोशी पर मीर ने पूछा, क्या सोच रही हो? मगर इससे पहले मुलाजमा आकर बोली, छोटे साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं, डेरे पर जाना है। मीर ने कहा, ओके, तुम जाओ, मैं आता हूँ। फिर उठते हुए मुस्कुराकर बोला, आज का दिन तुम्हारे साथ गुजारने का इरादा था, मगर काम की वजह से नहीं हो सका। फिर भी आने की कोशिश करूँगा। आज लंच में मेरा फेवरेट कुछ बनाना। ये कहकर उसके रुखसार पर बोसा दिया और वहाँ से निकल गया। वो साकित रह गई। लफंगा कहीं का, अपनी औकात दिखा गया। दिल तो करता है लंच में जहर पेश करूँ इस कमीने को। वो हस्बे मामूल लानतान में मशगूल हो चुकी थी। वो लंच करने के बहाने आगा जान से इजाजत लेकर हवेली आया तो सीधा किचन में गया, मगर वहाँ मुलाजमा को मसरूफ देखकर जरनेब की तलाश में ऊपर आया, जहाँ वो उसे लाउंज में ही मिल गई। जब देखो टीवी और गेम्स, इनके अलावा और कोई काम नहीं तुम दोनों को। अगर मुझे गुस्सा दिलाओगी तो तुम दोनों का ट्रिप कैंसिल करवा दूंगी। अब हमने क्या कर दिया? आप तो हमारी दुश्मन बन गई हैं। हमें मीर भाई ने इजाजत दी है ट्रिप पे जाने की। जरताशा मुनमुनाई, अगर मैं इजाजत नहीं दूंगी तो तुम लोगों का मीर भाई भी कुछ नहीं बोल सकेगा। जरनब के लहजे में गुरूर बोल रहा था, और ये कैसा गुरूर था कि मीर समझकर मुस्कुरा दिया। अब बस भी करो, क्या जान लोगी बच्चियों की। जाओ अपने रूम में जाकर स्टडी करो, 1 माह बाद एग्जाम्स हैं और मुझे तुम दोनों का रिजल्ट शानदार चाहिए। मीर की बात पर जहाँ जरनब ने चौंकर उसे देखा, वहाँ उन दोनों ने भी सुकून का सांस लिया, क्योंकि शुरू से जरनब अपना सारा गुस्सा उन पर निकालती थी, इसलिए दोनों की उससे जान जाती थी। और उनकी फेवरेट आप ही महताब थी, जो हमेशा उनकी साइड लेती थी। मोहतरमा, माना कि अब आप बहन के साथ साथ भावज भी बन गई हैं और अपने शोहर को अपनी हर बात मनवाने पर मजबूर कर सकती हैं, मगर प्लीज़, वो दोनों मेरी जान हैं, मैं उनके चेहरे उदास नहीं देख सकता। वो इसके करीब आकर नरमी से बोला, और मैं क्या हूँ? वो यकीनन गुस्से में गलत बोल गई थी और जब अपनी बात समझ में आई तो शर्मिंदगी से सर भी ना उठा सकी। मीर इसकी बात पर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। आप तो मेरी जिंदगी हैं, मेरे जीने की वजह, मेरी जान, मेरा सब कुछ है। मेरा ये मतलब नहीं था। वो नजरें चुरा गई।
जो भी था मुझे तो अच्छा लगा, मेरे नसीब में आई हो तुम। वो दूर हटी। लंच बनाना है। मेरे लिए क्या बनाया? मुझे पता ही नहीं था आपको क्या पसंद है। क्या तुम्हें नहीं पता? सारी हवेली मेरी पसंद जानती है। वैसे क्या बना रही हो लंच में? बिरयानी और कबाब। हारिस उसकी बात पर हंस दिया। अभी तुम्हें मेरी पसंद का पता नहीं और ये बना लिया, जब पता चलेगा तब क्या करोगी माय प्रिटी मिसेस? वो उसका पुरजोश होना ना समझी तो आंखों में सवाल लिए उसकी तरफ देखा। मीर ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे भी यही पसंद है। अगर याद हो तो मैं लंच कबाब के बगैर तो करता ही नहीं। उसकी बात पर उसके दिमाग में भी झमका हुआ कि सादिया बेगम हमेशा कबाब बनाकर फ्रिज में रखती थीं और सबको पता था कि मीर को कबाब और बिरयानी बहुत पसंद है और वो अनजाने में उसी की पसंद को अहमियत दे चुकी थी। उफ, मुझे भी यही कुछ बनाना था लंच में। अब नखरे करेगा। चलो कोई नहीं, जहाँ इतना किया वहाँ ये भी सही, बेचारा खुश हो जाएगा। वो दिल ही दिल में खुद को मुतमईन करने लगी। यार, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। और यकीन मानो मुझे इतना अच्छा लगा कि दिल चाह रहा है कि तुम्हें इनाम दूँ। आज पहली दफ़ा अपने हाथों से मेरे लिए लंच बनाया है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं इसी वक्त दूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उफ बीवी, काश तुम रुखसती मांग लेती। उसकी आंखों के लहजे में माने शरारती ज़र्ब थी। वो लाल सुर्ख होती आगे बढ़ी, पर मीर ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी जानिब खींचा, जिससे वो उसके सीने से जा लगी। शर्म करें। वो उसकी गिरफ्त से निकलती उसे धकेलती भाग गई तो मीर सर पर हाथ फेरकर मुस्कुरा दिया। जरनब को मौका मिल गया था हारिस को सबकी नजरों से गिराने और मीर वजाहत से बदला लेने का। मीर हारिस किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में 5 दिन के लिए न्यूयॉर्क चला गया था और जरनब किसी मौके की तलाश में थी, जो बिल आखिर उसे मिल ही गया। सब नाश्ता कर रहे थे कि मीर वजाहत बोले, अहमद लोहारी का फोन आया था। वो अपने बेटे की शादी जल्द करना चाहते हैं, इसलिए मैंने और हैदर ने मशवरा किया कि उनको तारीख दी जाए। वो जुमे को आएंगे। बड़ी के बाद छोटी का फिर सोचेंगे। उनकी बात पर महताब 2 लम्हे के लिए साकित रह गई, जबकि बाकियों के लिए भी ये चौंका देने वाली खबर थी, खास तौर पर जरनब के लिए। जी आगा जान, जैसे आप चाहें। क्यों? जैसे आगा जान चाहें वैसा ही हो? जरूरी तो नहीं। जरनब को माँ की बात से इख्तिलाफ हुआ। बकवास बंद करो, उठो यहाँ से। मीर वजाहत के चेहरे पर नागवारी देखकर मुमताज बेगम ने डांट कर कहा, मगर वो नजरअंदाज करके मीर वजाहत खान से मुखातिब हुई। मुझे आपका ये फैसला नामंजूर है, क्योंकि महताब वहाँ खुश नहीं रहेगी। वो किसी और को चाहती है। खामोश बेअदब लड़की। सादिया, उसे कहो कि मेरी नजरों से दूर हो जाए, वरना हम इसकी इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बिलाशुबा उसने उनके जलाल को आवाज दी थी। बात इतनी आसान न थी जितनी आसानी से वो कर गई थी, बगैर किसी खौफ खतर के। जरनब, अपने कमरे में जाओ। सादिया बेगम ने उठते हुए घूरा और साथ महताब को उसे कमरे में ले जाने का इशारा किया, मगर वो महताब का हाथ बुरी तरह झटक कर मीर वजाहत के गुस्से भरे चेहरे की तरफ देखकर बोली, आप कब तक हम सबकी जिंदगियों के फैसले करते रहेंगे? महताब को वहाँ शादी नहीं करनी तो बस नहीं करनी। मुमताज बेगम के जोरदार थप्पड़ ने उसे खामोश करवा दिया था। वो बेयकीनी से माँ की तरफ देखने लगी, जिन्होंने पहली बार उस पर हाथ उठाया था। अगर सादिया बेगम उन्हें बरवक्त ना रोकती तो एक और थप्पड़ लग सकता था। काश ये थप्पड़ मैंने तुझे तब मारा होता जब तूने पहली बार बगावत की थी उनके फैसलों पर। माफ़ कर दें आगा जान, मैं कमतर औरत आला ख़ानदान के मुताबिक उनकी परवरिश ना कर सकी। वो रोते हुए उनके कदमों में बैठ गई तो जरनब को गोया आग लग गई। अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना अगर बगावत है तो फिर मैं बागी हूँ। मैं किसी सूरत अपने ख़ानदान के सर पर दाग नहीं लगने दूंगा। तुम्हारा बागीपन इससे पहले कि हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने, हमें तुम्हें लगाम डालनी होगी। मीर वजाहत अपनी कुर्सी से उठते हुए नफरत भरी निगाह उस पर डालते हुए अपने मुलाजिम को पुकारने लगे। फजलुद्दीन! उनकी आवाज पर वो दौड़ा आया। अहमद लोहारी को फोन मिला। फजलुद्दीन ने फौरन हुक्म की तामील की। सादिया और मुमताज बेगम ने परेशानी से उनकी तरफ देखा, जो कह रहे थे, अगर तुम मेरे साथ रिश्ता कायम रखना चाहते हो तो अभी अपने बेटे को लेकर आ जाओ। मैं आज ही निकाह करना चाहता हूँ। पहले मेरी बड़ी पोती के लिए कहा गया था, मगर अब मैं छोटी लड़की तुझे दे रहा हूँ। तुम आ जाओ, मैं काजी का बंदोबस्त करता हूँ। खुदा हाफिज। उनके बाद सब एक दूसरे को चौंक कर देखने लगे और फिर उन्होंने कहा, हैदर को फ़ोन करके बुला लो और ख़बरदार, अगर किसी ने हारिस को इस बारे में कुछ बताया उसे परेशान करने की ज़रूरत नहीं। वो सादिया बेगम को तलकीन करते अपने कमरे में चले गए। सादिया बेगम ने जरनब को दम साधे खड़ा देखकर कहा, ये सब तुम्हारी ज़बान दराजी का अंजाम है। रहने दो बाजी, शुक्र करो कि वो इतनी बदतमीजी के बावजूद उसे कुएं में नहीं फेंक रहे, वरना तो वो इस घर में जाने के भी लायक नहीं। मुमताज बेगम खश्मगीन निगाहों से देखती चल दी तो सादिया बेगम भी हैदर खान को फ़ोन करने के ख्याल से अंदर की जानिब बढ़ गईं तो महताब उसके पास आई।
जरनब, अब क्या होगा? तुमने मुझे बचाने के लिए अपना आप दांव पर लगा दिया। मीर भाई को कॉल हरगिज नहीं करना और डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सख्ती से मना करती अपने कमरे में आ गई। शुक्रिया मीर वजाहत खान, आपने मेरा काम ना सिर्फ आसान कर दिया बल्कि अपनी बेइज्जती का सामान खुद ही कर लिया। वो तलखी से मुस्कुराई। क्या वो आगा जान माने? सादिया बेगम ने हैदर खान से पूछा और उनके नफ़ी में सर हिलाने पर खामोश हो गई। तुम्हें तो पता है वो अपनी बात के कितने जिद्दी हैं। एक दफ़ा जो कह दिया बस उस पर अमल करवाना है। हारिस भी नहीं यहाँ, वरना वो उनसे कुछ भी मनवा सकता था। भाई साहब, आप लोग किस चीज़ की फिक्र कर रहे हैं? हमने घर और लड़का देखा है। सब कुछ इस नाफरमान की औकात से बढ़कर है। मुमताज़ बेगम तलखी से बोली तो सादिया बेगम ने कहा, ऐसा ना कहिए भाभी, वो ज़रा जज्बाती है अपने बाप की तरह, और कुछ नहीं। और मैं चाहता हूँ कि उसकी दिल आज़ारी ना हो, इसलिए अभी सिर्फ निकाह कर देते हैं। रुखसती कुछ दिन बाद। आप लोग खाने का इंतज़ाम कर लीजिएगा। 4 लोग हैं वो, और अब तक तो आने वाले होंगे। हैदर खान की बात पर वो सरस बात में हिला गए और फिर जब निकाह ख्वां को लेकर हैदर खान, अहमद लोहारी और मीर वजाहत खान इसके कमरे में आए, जहाँ पहले मुमताज़ बेगम, सादिया बेगम, मेहताब, जरताशा, अलीना और लड़के की माँ बैठी थी। जी शुरू कीजिए। मौलाना साहब 1 मिनट, पहले ये तो बता दें कि निकाह पर निकाह हो सकता है क्या? जरनब की बात पर सब ठिठक कर इसकी जानिब देखने लगे, जो उठी और कुछ कागजात हैदर खान को पकड़ा दिए। मेरा निकाह आज से 1 माह और 4 दिन पहले ही मीर हारिस से हो चुका है। इसके ऐलान पर सब के सब शजदर होकर हैदर खान को देखने लगे, जिन्होंने इसकी बात की तस्दीक कर दी। हवेली की सब औरतें हैरत के शदीद झटके के जेर असर एक दूसरे को देख रही थीं, जबकि मीर वजाहत खान सख्ती से अपने दांत पीस कर रह गए। मीर को फ़ोन करो हैदर खान। उनकी सपाट आवाज़ पर हैदर खान ने मीर हारिस को कॉल की, जो दूसरी बेल पर ही पिक कर ली गई। जी बाबा जान, उसकी आवाज़ गूंजी। मीर वजाहत खान ने स्पीकर लाउड कर दिया और बोले, क्या तुमने जरनब से निकाह किया है? इनका सवाल मीर को 2 पल के लिए साकित कर गया और उसकी खामोशी पर मीर वजाहत गरजे, मीर, मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये लड़की तेरे निकाह में है? जी आगा जान। उसकी बात पर वो झटके से उठे और अहमद लोहारी से बोले, माफ़ करना अहमद, जब अपना खून अपना फ़ख्र ही दगा दे दे तो दूसरों से क्या शिकवा। वो कमरे से बाहर निकल गए तो अहमद लोहारी भी अपनी बीवी और बेटों को लिए वापस लौट गए। मुमताज़ बेगम गुस्से से जरनब की तरफ बढ़ी, पर हैदर खान ने रोक लिया। छोड़ दे भाई साहब, मुझे आज ही इसका किस्सा तमाम कर देना है। जब तक ये जिंदा रही, यूं ही जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बनाती रहेगी। इसका बाप मुझे डांट कर चुप करवा देता था कि मेरी बेटियों को कुछ मत कहना, ये मेरा फ़ख्र और गुरूर है, बेटों से बढ़कर हैं। पर ये तो शर्मिंदगी का बाइस है हमारे लिए। शुक्र है वो ये दिन देखने से पहले ही चले गए, वरना वो इज्जत का जनाजा अपने कंधों पर नहीं उठा सकते थे। अब तो कसूर मीर का भी है भाभी, उसने भी हमारा सर झुका दिया है। हैदर खान ने अपने बाप को आज सही मायनों में टूटा हुआ और एक लम्हे में ही कमज़ोर देखा तो वो हमगीन हो गए। नहीं भाई साहब, मीर ने सर नहीं झुकाया, बल्कि इस मनहूस औरत ने इज्जत को तार तार कर दिया है। जब ये सब जानती थी तो इन मेहमानों के आने से पहले भी तो बता सकती थी। घर की बदनामी घर तक रहती, पर उसने सोचा समझा मंसूबा बनाया था सिर्फ हमारा तमाशा बनवाने के लिए। दिल तो करता है इसे गोली मार दूं। मुमताज़ बेगम ने नफरत से उसे देखा, जो सर झुकाए खड़ी थी। वो बड़े मीर को पता नहीं क्या हो गया है, वो ज़मीन पर गिरे पड़े हैं। होश बाख्ता मुलाजमा के बताने पर सब उनकी तरफ दौड़े, मगर जरनब गुमसुम वहीं बैठी रह गई। अगर आगा जान को कुछ हुआ? वो नफ़ी में सर हिलाती बाहर को लपकी। मीर वजाहत खान को हार्ट अटैक आया था और फौरी इलाज मिलने की वजह से उनकी हालत ख़तरे से बाहर थी। 1 दिन अस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गए थे और घर आकर अपने कमरे तक महदूद हो गए थे, बिल्कुल गुमसुम, सिर्फ ज़रूरी बातों का जवाब देते थे। अगले दिन मीर भी वापस आ गया और जब सादिया बेगम से सारी हकीकत मालूम हुई तो वो भी शशदर रह गया। जरनब जो अपने कमरे में बंद थी, मेहताब की ज़बानी मीर के आने की खबर मिली तो वो भी उठकर आगा जान के कमरे की तरफ गई। जहां उसने बाहर लाउंज की खिड़की से झांक कर देखा तो आगा जान अपने बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह किए टेक लगाए बैठे थे और मीर उनके कदमों के पास बैठा था। बाकी सब भी वहीं थे। मुझे माफ़ कर दें आगा जान, मैं आपकी नाफरमानी का सोच भी नहीं सकता था, मगर अनजाने में आपका सर झुका दिया। आपको मेरे सबब शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आपका गुरूर और फ़ख्र खाक में मिला दिया। आपकी दी हुई हर सज़ा मुझे कबूल है, चाहे तो जायदाद और हवेली से बेदखल कर दें, मैं कुछ ना कहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह ये किया कि आपने मुझे हमेशा अपना गुरूर कहा और मैंने वो खाक में मिला दिया। इसमें उसका कोई कसूर नहीं, सब कुछ मेरे कहने पर हुआ। आपसे ला इल्म रखना भी मेरा ही फैसला था। इस गलती ने पूरे ख़ानदान की इज्जत दांव पर लगा दी। मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। कहकर वो उठा और कमरे से निकल गया।
जरनब का दिल मुट्ठी में आ गया। वो यही तो चाहती थी कि मीर वजाहत खान से बदला ले, मगर अब जब वो इस मुकाम पर आ गया था तो उसे सुकून नहीं मिल रहा था। खुशी क्यों नहीं हो रही थी? उन्हीं सोचों में उलझी वो राहदारी से गुजरती हुई मीर को देखकर रुक गई। एक नज़र में उसकी आंखों में दुख, शिकवा, टूटे एतबार के शीशे, गिला, नफरत और गुस्सा सब कुछ था कि जरनब नज़रें झुका गई और वो गुजर गया। उसे लगा कि अब वो कभी उसका सामना नहीं कर सकेगी। आगा जान ने मीर को माफ़ नहीं किया था और वो हमेशा के लिए हवेली छोड़कर जा रहा था। ये खबर मेहताब ने दी। कमरे में कोई न आया और ना ही वो बाहर गई। इस खबर ने उसके दिल को हिला दिया। दिल कह रहा था कि वो मीर के बगैर नहीं रह सकती। मीर ही उसकी खाली जगह का मालिक है। नहीं, मैं मीर को इस जुर्म की सज़ा कभी नहीं दूंगी जो उसने किया ही नहीं। वो दिल ही दिल में अहद करती मीर वजाहत के कमरे में गई, जो उसे देखकर चेहरा मोड़ गए। आज आपको मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि हमारी नफरत में वो आ गया है जिसके बगैर ना आप जी सकते हैं ना मैं। आप तो बड़े इंसाफ पसंद है। सज़ा उसको क्यों दे रहे हैं जो महज एक मोहरा था? खेल तो मैंने खेला था, बदला भी मेरी अपनी जिद का। अब सोचती हूँ तो खुद पर लानत भेजती हूँ कि आखिर किस चीज़ का बदला लिया? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे कॉलेज में पढ़ना, या बाप की सी रोक टोक जो अगर मेरा बाप जिंदा होता तो वो भी करता, या मीर के बराबर हक ना मिलने पर जबकि सब बराबर था, बस फ़र्क लड़का और लड़की का था, या जरताशा और अलीना से जेलसी का जो आपकी गोद में बैठती थी और आप इनकी पेशानी चूमते थे। ये सब तो नाफरमानी का सबब नहीं बनना चाहिए था। न जाने किस अंधेपन ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो बाहर खड़े मीर के दिल पर बिजली बनकर गिरे। जो कुछ बाबा ने आपके साथ 22 साल पहले किया था वही मैंने दोहराया। आपने उनको भी माफ़ कर दिया था और मुझे भी कुछ ना कहा, मगर क्यों? मुझे क्यों सज़ा नहीं दी? आग में झोंकते बेदखल करें, जो सज़ा देनी है मुझे दें, मगर मीर को नहीं। सारा कसूर मेरा है, सज़ा की असल हकदार भी मैं ही हूँ। हाँ, मीर का कसूर ये ज़रूर है कि उसने मुझ जैसी खुदगर्ज से मोहब्बत की। मैं तो अब उसके काबिल भी नहीं रही। हो सके तो अपने बेटे की खातिर मुझे माफ़ कर दीजिए, कहकर वो उनके कदमों पर झुक गई और फिर आंसू साफ करती झटके से अपने कमरे में लौट गई। अगली सुबह हैरत अंगेज थी कि मीर वजाहत खान पूरे 7 दिन बाद अपने कमरे से निकले और सबके साथ नाश्ता करने बैठे। सवाए जरनब के सब मौजूद थे। जरनब कहाँ है? उसे भी बुलाओ, नाश्ता करे। मीर वजाहत खान के कहने पर मेहताब उसे ले आई। पहली नज़र में जरनब ने हारिस को देखा, मगर उसने रुख फेर लिया और वो कट कर रह गई। तभी आगा जान ने कहा, मैंने फैसला किया है कि हारिस और जरनब की शादी कर दी जाए। निकाह तो हो चुका है, मगर बाकी रसूमात रहती हैं ना, और साथ मेहताब की भी। मेहताब, उस लड़के को कहो कि अपनी फैमिली के साथ आ जाए। अगर हमें तुम्हारे लिए मुनासिब लगा तो हम हाँ कर देंगे। हैदर, तुमने लड़के और उसके खानदान की सारी छानबीन करनी है। उनकी बात पर सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, सिवाय हारिस के, जिसके चेहरे पर नागवारी जरनब ने फौरन महसूस कर ली थी। हैदर खान और मीर वजाहत के जाने के बाद खवातीन आपस में बातें करने लगीं, तो मेहताब ने कहा, अगर तुम शहर जाओ तो जरना को भी साथ ले जाना। मगर हारिस ने साफ कह दिया कि इतने प्लान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेहताब की शादी होगी। जो रिश्ता मैंने 1 माह पहले जोड़ा था वो टूटने के लिए जोड़ा था, इसलिए अब इसका ख़त्म होना ज़रूरी है। वो सपाट लहजे में कहकर सबको हैरान छोड़ता लंबे डग भरता चला गया और जरनब आंसू पीती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अहमद और उसका खानदान सबको पसंद आ गया था। खासा खुशहाल घराना था और अपना कारोबार था। 1 माह बाद शादी की तारीख तय पाई, मगर हारिस सबसे नाला रहा। जरनाब ने बार बार मनाने की कोशिश की, मगर वो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। एक दिन जब मीर उसकी पुकार को नज़रअंदाज करता आगे बढ़ने लगा तो जरनाब ने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, मीर प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मगर वो गुस्से से बाजू छुड़ा गया और कहा, यही तो गलती हुई कि मैं तुम्हारी चालाकियों को ना समझ पाया। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि मेरी मोहब्बत मेरे सच्चे जज्बों की तौहीन की है। मुझे कोई गुस्सा नहीं, बल्कि दुख है कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया सिर्फ इसलिए कि तुम्हें आगा जान से बदला लेना था और मुझे उनकी नज़रों में झुकाना था। तो अब जश्न मनाओ, ये दिखावे के आंसू मुझे नहीं बहकाएंगे। वो भड़कते लहजे में कहकर रुका नहीं, बाहर निकल गया और जरनब बेबसी से वहीं बैठ गई। मेहताब जो सब सुन चुकी थी उसके करीब आकर बैठ गई और कहा, अब तुमने उनका दिल तोड़ा है तो तकलीफ तो होगी ही, मगर माफ़ी भी तो मांग रही हो ना। अकेले माफ़ी से बात नहीं बनेगी, तुम्हें उन्हें मनाना होगा। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं और तुम अपने नाराज शौहर को मनाने के बजाय यूं बैठी हो। जरनब ने कहा, मैं मना तो रही हूँ, और कैसे मनाऊं?
इस पर मेहताब ने हंसते हुए कहा, ओह मेरी कमअक्ल बहन, ऐसे नहीं, जरा और अंदाज से मनाने की कोशिश करो। तुम उनकी बीवी हो, मनाने के लिए आखिरी हद तक भी जाना पड़े तो जाओ, जरा रोमांटिक अंदाज में जाओ, देखना कल ही रुखसती का शोर मचाएंगे। मेहताब की बात समझकर जरनब के गाल सुर्ख हो गए और वो शर्म से नजरें ना उठा सकी। रात को सबके सोने के बाद वो मीर के कमरे की तरफ बढ़ी, आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और दबे पांव अंदर आई। कमरे में नाइट लैंप की नीली रोशनी फैली हुई थी और मीर मरून कंबल में दुबका सो रहा था। वो लम्हा भर रुककर उसे देखती रही। इतना मासूम लग रहा था कि वो बेइख्तियार करीब चली गई। वापस जाने का सोचा, मगर उसकी नाराज़गी याद आते ही उसके सरहाने बैठ गई और उसके नरम बालों को पेशानी से हटाते हुए आहिस्ता से बोली। उसकी नींद टूट गई और वो चौंक कर उठ बैठा। उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गया और कहा, तुम यहाँ, और वो भी इस वक्त? जरनब ने कहा, जब आप हाथ ही नहीं आ रहे थे तो मैं क्या करती, वैसे भी आपको तो मेरी 2 मिनट की बात भी गवारा नहीं। वो मासूमियत से बोली तो मीर ने गहरा सांस लेते हुए लाइट ऑन की। जरनब सादा पिंक गरम सूट और शाल में लिपटी, बाल जूड़े में बंधे, सादगी में भी दिल को छू गई। वो उसकी गहरी निगाहों से घबरा गई और बोली, कब तक नाराज रहेंगे? मीर का दिल उसे कमरे में देखकर ही पिघल गया था। हारिस ने कहा, तुमने बहुत हर्ट किया है मुझे। मैंने मोहब्बत में हाथ बढ़ाया था, मगर तुमने बदले के लिए। जरनब ने आंखों में नमी लिए कहा, ये सच है कि मैंने आगा जान की नज़रों में आपको गिराने के लिए ये सब किया, मगर ये इससे भी बड़ा सच है कि मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब मुझे लगा आप मुझसे दूर जा रहे हैं। अब पता चला कि मैंने अपने साथ ज्यादती की है। वो पुरनम आंखों से उसके करीब आई और वो उसे अपने हिसार में लेकर उसकी सब नादानियां और गलतियां माफ़ कर गया। दरअसल मैंने दिल उस दिन ही साफ कर लिया था जब तुमने आगा जान के सामने सब मान लिया था, और ये उससे भी बड़ा सच था कि हारिस ना तो तुमसे नाराज रह सकता है और ना नफरत कर सकता है, बल्कि मुझे अपनी ही ज़ात पर गुस्सा आया कि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ इतना रूडली बिहेवियर क्यों किया था। इतनी मोहब्बत? जरनब की आंखों से आंसू रवा हो गए जो उसके सीने में जज्ब होने लगे। मीर ने सिर्फ ब्लैक बनियान और ट्राउज़र पहन रखे थे। अपने सीने पर नमी महसूस करके उसे नरमी से आगे किया जो रो रही थी। तुम रो रही हो? क्या तुम इस वजह से रो रही हो कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ? वो हैरत के झटके के जेरे असर थी। जरनब रोते हुए हंसी। तो तुम भी कर लो ना मुझसे इतनी मोहब्बत। मीर मुस्कुराते हुए उसे दोबारा अपने सीने से लगा चुका था। आप जितनी तो नहीं कर पाऊंगी, पर बहुत करते हो। वो सुकून से उसके सीने पर सर टिका गई। वो हैरत से उसे देखने लगा जो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों की रोशनी उसे नजरें चुराने पर मजबूर कर गई। देखो, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो तो कोई सबूत भी तो दो। क्या मैंने मांगा था आपसे और ना आपने दिया? वो उसकी शरारत समझ चुकी थी। वो उसकी रोशन पेशानी, उसके गुलाबी होंठ और आंखों को चूमता उसे सिटपटा गया। उसका लम्स उसके गालों को दहका गया। फिलहाल तो इतना सबूत दे सकता हूँ, बाकी तो आज से 20 दिन बाद ही साबित कर पाऊंगा। उसकी संजीदगी से जरनब का दिल धड़क उठा। उसकी मध्यम सरगोशी उसे उसके सीने में सिमटने पर मजबूर कर गई। मतलब कि कोई चांस नहीं? रात के इस पहर आपके सीने से लगी खड़ी हूँ, क्या अब भी सबूत चाहिए? नजरें झुकाए वो बोली। उसकी बात सीधे उसके दिल में उतर गई। जरनब उसकी आंखों से छलकते पैगाम को नजरअंदाज करती अलग होने लगी तो वो हाथ पकड़कर रुक गया। मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी भी क्या है? एक रात ही तो है, गुजर जाने दो। नहीं जी, अब मुझे चलना चाहिए। वो ये कहकर रुकी नहीं, जल्दी से कमरे से निकल गई। आज शादी का दिन था। मेहताब के साथ जरनब भी स्टेज पर सजी बैठी थी। आगा जान ने रुखसती के वक्त दोनों के सरों पर हाथ रखा था, जिस पर दोनों इमोशनल हो गईं। बिलाखिर सबकी रजामंदी से उनके रिश्ते जुड़ चुके थे, जो सबके लिए खुशी का बाइस थे, और उनकी आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, क्योंकि जरनब को मेड की मोहब्बत हमेशा के लिए नसीब हो गई थी। आज मुकलावे का दिन था। मेहताब अपने ससुरालियों के साथ हवेली आई हुई थी। घर के तमाम अफराद खाने की मेज़ पर जमा थे कि अचानक दादा जान ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। मुमताज़ बेटा, मैं सोच रहा था कि अब मेहताब बेटी की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, तो क्यों ना मीर और जरनब का वलीमा भी कर दिया जाए। दादा जान के मुंह से बेटा का लफ्ज़ सुनकर मुमताज़ बेगम हैरत ज़दा रह गई, मगर मेहमानों की मौजूदगी में अपनी हैरत छुपाते हुए बोली, बिल्कुल आगा जान, आप भाई साहब से मशवरा कर लीजिए। तो हाँ हैदर बेटा, बिल्कुल आगा जान, जैसा आप चाहें वही ठीक है। तो तय पाया कि इसी हफ्ते की शाम को वलीमे की तकरीब होगी।
जिस पर सबने रजामंदी शामिल की। खाने के बाद दादा जान ने मुमताज़ बेगम और उनकी तीनों बेटियों को अपने कमरे में बुलाया। वो खाने से फारिग होकर जब दादा जान के पास पहुंची तो वो अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आमद पर दादा जान ने उन्हें बेड पर बैठने का इशारा किया। चारों माँ बेटियां वहां बैठ गईं तो दादा जान रंजीदा और गम भरे लहजे में बोले, तुम लोगों के साथ मैंने सारी जिंदगी जो सुलूक किया, शायद मैं उसकी माफ़ी का हकदार नहीं, मगर मेरे बच्चों, मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा और वही किया है। अगर इसमें कोई कमी या ज्यादती रह गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने बेटे के गम में तुम लोगों के साथ अनजाने में नाइंसाफियां कर गुजरा हूँ। बेटा का लफ्ज़ सुनते ही मुमताज़ बेगम तड़प उठी और फूट फूट कर रोने लगी। आज आगा जान ने उन्हें बेटा कहकर सारी जिंदगी के गुनाहों का बोझ अपने दिल से उतार दिया था। नहीं आगा जान, आप ऐसा ना कहें। जरनब उनके कदमों में जा बैठी और ज़ारो कतार रोने लगी। इसी दौरान बाहर से गुजरते हुए मीर ने कमरे का ये मंजर देखा। जरनब के बाद मेहताब और छोटी बेटी भी उनके पास आकर बैठ गई और दादा जान ने आज पहली बार अपने दिल का गम उनके साथ हल्का किया। दादा जान के कमरे से आने के बाद जरनब अपने कमरे में मौजूद थी जब अचानक उसके मोबाइल पर मैसेज की बीप हुई। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो मीर का पैगाम था, ऊपर छत पर आओ। जरनब ने लम्हा भर तवक्कुफ किया और फिर खामोशी से ऊपर जा पहुंची। मीर पहले से ही वहां मौजूद था। उसने जरनब को देखते ही मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया और साथ रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जरनब जैसे ही कुर्सी पर बैठी, मीर ने नर्म और मध्यम लहजे में कहा, मैंने उस दिन तुम्हारी और दादा जान की सारी गुफ्तगू सुन ली थी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो सारी जिंदगी जिद और तलखी दिखाती रहीं, एक तरह से ठीक ही था। एहसासे कमतरी का शिकार बच्चा ऐसे ही रवैये इख्तियार करता है। आज जब दादा जान ने तुमसे माफ़ी मांगी तो वो सब कुछ मेरे दिल को छू गया। जरनब धीमी आवाज़ में बोली, मीर, दादा जान आखिर क्यों माफ़ी मांगेंगे? वो बस थोड़े जज्बाती हो गए थे। और हाँ, आप इन बातों के बारे में ज़्यादा ना सोचो। फिर मीर ने उसकी आंखों में देखते हुए शरीर लहजे में कहा, इसकी बजाय कुछ और सोचो, जैसा कि हमारे वलीमे और शादी के बाद के दिनों के बारे में। जैनब का चेहरा लाल गुलाबी हो गया। वो शर्माते हुए बोली, नहीं, इस बारे में नहीं। मीर ने शोखी से पूछा, तो फिर किस बारे में सोचूं? जैनब झिझकते हुए बोली, किसी बारे में भी नहीं। वो उठने लगी तो मीर ने उसका बाजू थाम लिया और पल भर में उसे अपनी गोद में बिठा लिया। जैनब कांपती हुई सरगोशी करने लगी, कोई आ जाएगा। मीर ने उसके कान के करीब झुककर कहा, कोई नहीं आएगा। और तुम मेरी बात सुनो, आज तक जो हुआ, जैसा भी हुआ, सब भूल जाओ। दादा जान अब बदल चुके हैं। जब तक वो जिंदा है हमें उनका ख्याल रखना है। जैनब ने उसकी बात पर हाँ में सर हिलाया। मौका देखते ही वो मीर की गिरफ्त से निकलकर भाग गई और अपने कमरे में जा पहुंची। पीछे से मीर की शोख आवाज छत पर गूंजी, बेगम साहिबा, जहां मर्जी भाग लीजिए, कल को आना तो हमारी कैद में ही है। जैनब दरवाजे के पास रुक गई। उसके लबों पर अनजानी सी मुस्कुराहट और दिल में एक अनोखी सी लर्जिश थी। मीर की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। हवेली आज रोशनियों और रौनक से जगमगा रही थी। दरो दीवार पर जुगनुओं की मानंद लटकते कुमकुमे और फूलों की खुशबू माहौल को ख्वाबों जैसा बना रही थी। सहन में बड़े बड़े झाड़ फानूस जगमगाते हुए मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। औरतों के हिस्से में खुशियों भरी हंसी गूंज रही थी और मर्दों की जानिब शायाने शान महफिल सजी थी। जरनाब सबकी निगाहों का मरकज बनी सफ़ेद और सुनहरी रंग के लहंगे में यूं लग रही थी जैसे चांदनी ज़मीन पर उतर आई हो। माथे पर बिंदिया, हाथों में मेहंदी और चेहरे पर घबराहट भरी मुस्कुराहट। वो अपने दिल की धड़कनों को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इधर मीर नीले और सिल्वर रंग की शानदार शेरवानी में रिवायती वक़ार और जवानी की रानाई समेटे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में घिरा हुआ था, मगर उसकी नज़रें बार बार एक ही समत उठती थीं, जहां जरनब बैठी थी। खाने के बाद जब सब लोग दादा जान के साथ मसरूफ़ हो गए तो मीर ने आहिस्तगी से जरनब को देखा। निगाहों की ज़बान वो थी जो लफ्ज़ों से ज़्यादा गहरी लगती थी। जरनाब ने शर्माते हुए नजरें झुका ली, मगर दिल में अनजानी सी राहत महसूस हुई। कुछ ही देर बाद दादा जान ने सबके सामने खड़े होकर दुआ की, या अल्लाह, ये नया रिश्ता दोनों के लिए मोहब्बत, सुकून और रहमत का सबब बने। सबने बुलंद आवाज़ से आमीन कहा। मीर ने उसी लम्हे जरनाब के करीब जाकर धीरे से सरगोशी की, ये दुआ आज से नहीं, सदियों पहले मेरी तकदीर में लिखी जा चुकी थी। जरनाब ने हैरान होकर उसे देखा। उसकी आंखों में शोखी और मोहब्बत की चमक एक साथ रक्स कर रही थी।
वो कुछ बोल ना सकी और सर झुकाकर दिल की धड़कनों को संभालने लगी। रात गहरी हो चुकी थी, मेहमान रुखसत हो रहे थे, लेकिन हवेली की फजा में अभी तक मुस्कुराहटें, दुआएं और खुशबुएं गूंज रही थीं। ज़ैनब जान गई थी कि आज से उसकी जिंदगी का नया बाब शुरू हो गया है, एक ऐसा बाब जिसमें मीर की हंसी, उसकी मोहब्बत और उसकी चाहत हमेशा शामिल रहेगी। रात की खामोशी ने हवेली को घेर रखा था। सहन में जगमगाते कुमकुमे बुझ चुके थे, सिर्फ दूर आसमान पर चमकते सितारे गवाह थे। हवा में गुलाब और चंबेली की खुशबू रची हुई थी। ज़ैनब अपने कमरे में मौजूद थी, सफ़ेद रेशमी लिबास में लिपटी, घूंघट के नीचे छुपा चेहरा शर्म से गुलाब की मानंद खिल रहा था। हाथों में मेहंदी की लालियां और पाजेब की मधम झनकार कमरे की खामोशी को मौसीकी बना रही थी। दिल की धड़कनें तेज थीं और नजरें मुसलसल झुकी हुई थीं। उसी लम्हे दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। मीर कमरे में दाखिल हुआ, गहरी नज़र ज़रनब पर डाली और फिर धीरे धीरे करीब आता गया। ज़रनब ही घबराकर पलकें झुका लीं। दिल की धड़कन और भी बेकाबू हो गई। मीर ने कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठते हुए मध्यम लहजे में कहा, बेगम साहबा, आज से आप पूरी मेरी हैं। ज़रनब शरारती लहजे में बोली, तो पहले क्या आधी थी? मीर ने उसका हाथ थाम लिया। मेहंदी की खुशबू कमरे में फैल गई। उसकी गिरफ्त मजबूत मगर नर्म थी। ज़रनब ने कांपते हुए हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, मगर मीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब भागने की इजाज़त नहीं, ये कैद उम्र भर की है। ज़रनब की पलकों पर नमी झलकने लगी। वो घबराकर बोली, मीर, सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया है, मुझे डर लग रहा है। मीर ने उसके घूंघट को आहिस्तगी से सरकाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ये डर नहीं, मोहब्बत है। दिल को पहचानने में वक्त लगता है और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। ज़रनब की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उनमें सुकून की रोशनी थी। मीर ने उसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ किए और आहिस्तगी से माथे पर बोसा दिया। कमरे की फिजा में सुकून और कुर्बत का ऐसा जादू फैल गया जिसे सिर्फ वो दोनों ही महसूस कर सकते थे। बाहर सितारे चमक रहे थे और अंदर दो दिलों की दुनिया एक हो चुकी थी।